નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં વાત કરીશું આજે ગઈકાલે જે પ્રકારે ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા બે રાજ્યોના, અને એક્ઝિટ પોલ જે પ્રકારનો આવ્યો હતો અને તે એક્ઝિટ પોલથી એક રાજ્યમાં સદંતર વિપરીત પરિણામ એટલે કે ચોંકાવનારું પરિણામ હરિયાણામાં ખાસ કરીને જોવા મળ્યું છે. હરિયાણાની વાત કરીએ તો ઘણા બધા મુદ્દા હતા, જેમાં જવાનની આપણે વાત કરીએ, કિસાનની વાત કરીએ, પહેલવાનનો મુદ્દો છે. આ તમામ મુદ્દાઓ કે જે કોંગ્રેસે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઘેરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો, તેના આધારે પ્રચાર પ્રસાર પણ કર્યો. પહેલવાનની આપણે ખાસ વાત કરીએ તો ત્યાં વિનેશ ફોગાટને પણ પાર્ટીમાં સામેલ કર્યા. તે ચોક્કસથી જીતી ગયા વ્યક્તિગત રીતે, પરંતુ ત્યારબાદ પાર્ટીની વાત કરીએ તો આ એક મુદ્દા કે જે ન ચાલે. અગ્નિવીરનો મુદ્દો આપણે હોય, બેકારીનો જે મુદ્દો હોય, તે તમામ મુદ્દા કે જે કોંગ્રેસ માટે ન ચાલે અને કોંગ્રેસને કંઈક ને કંઈક નિરાશા હરિયાણામાંથી મળી છે. આ તમામ મુદ્દાને જોતાં એક પ્રકારે લાગતું હતું કે આ વખતે હરિયાણામાં કોંગ્રેસ 10 વર્ષ બાદ ફરીથી આવી શકે છે, પરંતુ ફરી એક વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વિજય મેળવ્યો. 2014, 2019 અને 2024 એમ જીતની હેટ્રિક હરિયાણામાં મારી છે. એટલે કે એક ઇતિહાસ કહી શકાય કે હરિયાણાની રાજનીતિમાં સર્જાયો છે આટલા વર્ષો બાદ હેટ્રિક કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી મારી છે. બીજી તરફ જમ્મુ કાશ્મીરના પરિણામોની વાત કરીએ તો ત્યાં આશા મુજબનું જ પરિણામ આવ્યું છે. જે પ્રકારે ચર્ચાઓ હતી કે જમ્મુમાંથી ચોક્કસથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને સીટો મળી શકે છે. 2019 કરતાં 4 સીટ વધુ ચોક્કસથી આવી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને, પરંતુ વેલીમાંથી આપણે વાત કરીએ તો ત્યાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને સીટો નથી આવી અને નેશનલ કોન્ફરન્સ અને સામે કોંગ્રેસ, આ બંનેનું ગઠબંધન કે જે જીતી ગયું છે. અને ત્યાં સત્તામાં હવે ઉમર અબ્દુલ્લા કે જે ખાસ હવે તેઓ સીએમ બનવાના છે. ત્યારે આજની ચર્ચા બંને રાજ્યોના જે ચૂંટણી પરિણામો આવ્યા છે તેના માટે જ રહેવાની છે. જનતાનો ચોંકાવનારો આ જનાદેશ હરિયાણામાં કેમ આવ્યો છે, શું એનાલિસિસ, ખાસ આપણે જે નાનામાં નાનું એનાલિસિસ ગણીએ તો પરિવારવાદ એક કોંગ્રેસને નડી ગયો છે. આ સિવાય હુડ્ડા અને શૈલજાની જે ક્યાંક ને ક્યાંક તકરારનો મામલો, આ મામલો કોંગ્રેસને નડ્યો છે કે કેમ, આ તમામ બાબત પર ચર્ચા કરીશું. અને સાથે જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે પરિણામ આવે છે ત્યારબાદ હવે આગળ કેવી રીતે વધાશે, કેમ કે નરેન્દ્ર મોદી સાથે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે કેન્દ્રની સરકાર સાથે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવી પડશે. તમામ બાબત છે. ઉમર અબ્દુલ્લા અને તેમની પાર્ટી કઈ રીતે આગળ વધશે તે પણ ચોક્કસથી મહત્વનું રહેશે. આ તમામ બાબત પર ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા સાથે બે મહેમાન જોડાઈ ગયા છે, ડૉક્ટર અજય તિવારી અને સાથે જ હર્ષવર્ધન પાંडेजी, राजकीय विश्लेषक, बनने अपनी साथ जुड़ाई गया है. स्वागत है दोनों का निर्माण न्यूज़ में. सबसे पहले अजय जी आपके पास आना चाहूँगा. जिस प्रकार से हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, शॉर्ट में पहली प्रतिक्रिया आप दोनों की, दोनों राज्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं? परिणाम कल आ गए, अब तक जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, उमर अब्दुल्ला ने बात कही कि दिल्ली के साथ बातचीत करनी होगी, सांठगांठ रखनी होगी, क्योंकि आगे भी काम करने हैं, झगड़े करके तो आगे बढ़ नहीं सकते हम. किस प्रकार से अभी सियासत चलेगी जम्मू कश्मीर की, खास करके बात करें, और हरियाणा की, दोनों का आप क्या एनालिसिस करते हैं इन शॉर्ट में? पहले देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और जिन्होंने भी वोट का इस लोकतंत्र में अपने वोट का महत्व समझा और वोट दिया, उसको बहुत बहुत बधाई कि उनके वोट के द्वारा बहुत से लोग जीते हैं और बहुत से लोग हारे हैं. वो निराश ना हो और फिर जीत सकते हैं, क्योंकि समाज में काम करने वाले की जीत होती है. आपको मैं पहले जम्मू कश्मीर की बात बताता हूँ. जम्मू कश्मीर में कश्मीर की तरफ भारतीय जनता पार्टी की बढ़त परसेंटेज में जरूर हुई है, लेकिन जम्मू में उसे अच्छे सीट हासिल हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत नहीं हो पाई है. हरियाणा में एंटी कन्विंसिंग थी. हरियाणा में इतनी एंटी कन्विंसिंग थी कि चुनाव स्टार्ट होने से पहले से ही लोगों में चर्चा थी कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी. कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसा कहते कहते यहां तक एनालिसिस हो गया कि चुनाव भी हो गए, वोट भी पड़ गए, और भारत देश के प्रत्येक चाणक्य ने, प्रत्येक न्यूज चैनल के या प्रत्येक मैगजीन के लोगों ने इस बात की घोषणा कर दी कि कांग्रेस की सरकार लगभग 50 सीट से ज्यादा से बन रही है. मुझे नहीं समझ में आता कि क्या उन सारे लोगों का एनालिसिस, जिन्होंने एनालिसिस लाइफ में कभी किया हो, एनालिसिस करने वाले व्यक्ति कौन है? हम हैं, आप हैं, और वोट देने वाला वे व्यक्ति है जो गोपनीय वोट देता है. तो ऐसी स्थिति में सबका हार जाना और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जीत जाना यह साबित करता है
कि लोकतंत्र और तंत्र दोनों की विजय हुई है। आपने देखा होगा कि तंत्र मैं उसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने बीच में कई बार इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की जो गणित हो रही थी, जो गिनती हो रही थी, जो काउंटिंग हो रही थी, उसको स्लो कर दिया, उसे रोक दिया। तो उस पर एक शंका का विषय पैदा होता है। वह ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों का जीत जाना, जिनका भरोसा नहीं था, वो व्यक्ति भी अगर जीत जाता है तो निश्चित तौर से थोड़ा सा इसमें हम लोगों को संशय होना चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ऐसा खेल कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और से हो रहा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो रहा होगा। ऐसा विश्वास है कि जनता के मत पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत से बनाई है। और ये पहली बार भारत देश के इतिहास में पहली बार, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैट्रिक के साथ बन रही है। हरियाणा के चुनाव से यह भी एक असर पड़ेगा। हरियाणा के चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, मुंबई का चुनाव है। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हरियाणा के चुनाव से फर्क पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक चुनाव जीते हुए विधायक को, प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक व्यक्ति को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार हरियाणा में तीसरी हैट्रिक लगाई है। और कौन मंत्री बनता है, कौन उप मुख्यमंत्री बनता है, नायब सिंह सैनी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। और मैं फिर से अगेन सनातन धर्म के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यही बात जो काउंटिंग की बात है, कल पवन खेड़ा जी ने भी बोला, जयराम रमेश जी ने भी बोला कि ये हुआ है, इसी क्या कर रहा है, बहुत सारे आरोप कल लगाए। क्योंकि 9:42 उसके बाद का समय हम बात करें तो 65 में से सीधा 38-40 पे आ जाना, इसी की वजह से उसके बाद ये जो आरोप है वो लग रहा है। ईवीएम पे भी आरोप ज़्यादातर लग रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि यंत्र की जीत है। आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप तमाम तरह के नैरेटिव तो चला, कभी संविधान के खिलाफ नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, कभी जो है दलितों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कांग्रेस की कोशिश की गई, लेकिन वो रंग नहीं लाई। क्योंकि देखिए, काठ की हांडी जो है वो बार बार चढ़ती नहीं। एक बार अगर आपने नैरेटिव बना लिया और 240 पर अटका दिया तो हर चुनाव में कांग्रेस सोचती है कि उसी नैरेटिव के जरिए वो जीत जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें मांगना पड़ेगा। आज के दौर में हम देखें टेक्नोलॉजी कितनी हाईटेक हो चुकी है, सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है। और आप ये देखिए कि जम्मू में मशीन तो ठीक चल रही थी, और ऐसी क्या वजह होगी कि हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक मशीन में चुनाव आयोग जो है बहुत देर से धीमे धीमे आंकड़ा दे रहा था। तो ये अपनी कहने की बातें हैं कांग्रेस की। वो क्या है कि अभी उसको आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी चुनाव फेस करने हैं। हो सकता है उसकी एक रणनीति हो कि इसको जो है भुनाने की वो कोशिश करे कि ये मशीनों की जीत है, यंत्र की जीत है। तो ये है। लेकिन लोकतंत्र में देखिए फैसला है। आप ये देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नैतिक तौर पर जो है हार मानी है। कल जितनी भी बाइट चैनलों को दी उन्होंने साफ तौर पे कहा। लेकिन जो दिल्ली दरबार है कांग्रेस का, वो इसे पचा नहीं पा रहा है, इस हार को जो है। और वो तमाम तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। तो इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन हम ये देखिए, अगर आपके पास अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो जो उनके हारे कैंडिडेट हैं वो चुनाव आयोग के पास जाएं, वो कोर्ट के पास जा सकते हैं, और वो जो है अपने हार का जो सर्टिफिकेट है, जो जीत हार वाला सर्टिफिकेट है, वो ना ले। लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं। कई बार दिखता कुछ और है, कहता कुछ है। कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। और यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जाति और मजहबी राजनीति में भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने इस बात को एक बार फिर साबित किया है, और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों को भी हम देखें तो इसमें साबित किया है। हरियाणा में हम देखें, भाजपा ने ओबीसी और उन जातियों को गोलबंद करने पर सबसे ज्यादा ध्यान इस चुनाव में दिया, जिनका जाट समुदाय से अंतर्विरोध कहीं ना कहीं जो है पहले होता रहा। क्योंकि कांग्रेस का पूरा नैरेटिव जो है किसान, पहलवान और जवान पर केंद्रित रहा, और जिसका सीधा संबंध जो है जाट समुदाय से बनता है। तो भाजपा के लिए अन्य जातियों को गोलबंद करना यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान हो गया। इसी के अलावा दलितों के वर्गीकरण संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने राज्य की परिस्थितियों के मुताबिक जो है प्रभावी इस्तेमाल किया। आप देखें, हरियाणा में बीजेपी ने जाति समीकरण को, जो गैर जाट वाला है, उसको बहुत अच्छे तरीके से साधने की कोशिश की। आपने देखा कि पिछड़ा वर्ग को चुनाव से पहले जो है नगर निकाय में जो है 8% के आसपास आरक्षण दिया, और इसी तरीके से क्रीमी लेयर की सीमा जो है वो 6 लाख से बढ़ा के जो है 8 लाख कर दी। तो तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए तमाम तरह की चीजों को उसने जो है इस्तेमाल किया। इसलिए बीजेपी के लिए जो है यहाँ पर जमीन जो है आसान बन गई। और दूसरा जो है, हिंदुत्व के एजेंडे पर उसने देखा कि वो ज्यादा सेंधमारी नहीं कर पाई लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 5-5 सीटें मिली और वोटों का अंतर भी ज्यादा नहीं था।
46% के आसपास जो है बीजेपी को वोट मिले थे इस लोकसभा चुनाव में, और तकरीबन 44% के आसपास कांग्रेस को। अभी भी ज्यादा अंतर नहीं है, अभी भी हम देखें तो 39 और 40 का फेर है। दोनों पिछले बार 5-5 जीते थे, इस बार ये अंतर बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जो अन्य दल थे उनने भी जो है कांग्रेस की जो है स्थिति जो है यहाँ पर खराब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और जो दलित राजनीति है वो वोट बैंक जो है वो शिफ्ट कर गया, जिसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। और मैं कश्मीर की बात करना चाहूंगा। वोट कटे होंगे कांग्रेस के जो वोट है उसमें से? नहीं नहीं नहीं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। अगर वोट के परसेंट के लिहाज से हम देखें तो 1.7% के आसपास वोट है। लगता है मुझे सारी जमानत पूरी आम आदमी पार्टी की जब्त हुई है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक सीट उसको मिली है, शायद डोडा की सीट है वो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा चुनौतियां। और मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ, जहां जहां पर भाजपा का कांग्रेस से डायरेक्ट मुकाबला है, अगर कोई गठबंधन काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए मुश्किल बढ़ती है कांग्रेस की। तो यही हमने हरियाणा के अंदर देखा है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो 24 सीटें पहली बार जीती थी। इस बार सीटों के लिहाज से देखें तो उसकी सीटें बड़ी हैं, 5% उसने गेन ही किया है। वही कांग्रेस की बात करें तो वो केवल 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये है। और कश्मीर का जो इलाका है वहां पर बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं थे, और पूरा चुनाव जैसे लोकसभा में पूरे कैंडिडेट उसने नहीं उतारे, इसी तरीके से इस राज्य के विधानसभा चुनाव में भी पूरे कैंडिडेट उसने जो है नहीं उतारे, जिस कारण जो है उसको जो है वो बहुत मुश्किलें हुई। और हिंदू बाहुल्य इलाकों में पूरा ध्रुवीकरण हुआ, जो हिंदुत्व वोट है पूरा उसके साथ गया, और कश्मीर का पूरे इलाके में जो मुस्लिम वोट है कंसोलिडेट वो जो है शिफ्ट कर गया नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला को। जी जी अजय जी, कश्मीर की पहले बात करें अभी। तो कश्मीर में जो वैली में जितने वोट्स नहीं मिले हैं ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि 370 की बात करें उसके बाद जो जो काम हुए हैं, जो वो फिर टूरिज़्म की बात करें या फिर बहुत सारी रोजगारी की बात करें, सब में काम हुए हैं। लोग एडमिट भी कर रहे हैं वहाँ पे, फिर भी वोट नहीं मिले, वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले। आप इसका क्या वजह मानते हो? नहीं, देखिए ऐसा है, वो कश्मीर चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है, जम्मू में काफी लोग पहुंच चुके हैं, जम्मू में अच्छा वोट पाया है उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में वोट नहीं मिले हैं, वोट परसेंटेज तो उनका बढ़ा ही है। आज नहीं तो कल आप देखिएगा, अगली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। नेशनल कांग्रेस का जो है उनका अपना एक पहले से वोट बैंक बना हुआ है, कश्मीर के अंदर के से ही उन्होंने जीत करके इतनी सीटें हासिल की है। कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता वहां नहीं मिली हुई है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से आज नहीं तो कल वहां जनाधार उसका बढ़ा हुआ है, उसके परसेंटेज बढ़े हुए हैं। और 370 और बाकी जो फैक्टर है वो फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर काम किया है। हमें इस चीज को कतई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी वहां सफल नहीं। हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां किया है। जम्मू में बहुत अच्छी सीट लाई है, कश्मीर में बड़े अच्छे परसेंटेज लाए हैं। आगे चल करके निश्चित तौर से वहां पर सफलता मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रही है, आतंकवाद से निपटने के लिए, 370 से निपटने के लिए, बहुत से ऐसे तरीकों से निपटने के लिए, तो वो सफलता आज नहीं तो कल वो पूरा होगा। जम्मू भारत देश का जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में यदि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने एक इतना बढ़िया अपना प्रदर्शन किया तो इस तारीफ की बात है। और ये भारत देश के लिए एक अच्छी सूचना भी है कि जो हमारा पीओके कब्जे में था वो पीओके इसी बहाने वापस आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। और जब वहां पर बहुमत होगी, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों की बहुमत होगी, तो पीओके पर भी कब्जा किया जा सकता है। इसलिए मैं तारीफ करता हूं नरेंद्र मोदी को और वहां के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने, हाँ एक बात दुख जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रैना साहब हैं, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हार गए हैं। तो उनको भी अपनी हार से मायूस नहीं होना है, उनको अपनी कमियां ढूंढना है कि मैं कैसे हार गया और किस तरह हार गया। आगे चल के फिर से वो लगे और मेहनत करें। और भारतीय जनता पार्टी का अभी फिर से चुनाव, अभी बहुत से चुनाव बाकी हैं वहां पर, और जैसे पार्षद के चुनाव हैं और भी चुनाव होने वाले हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर विजयी बनाने का काम करें। जी। और इस बार जो है मैं इसमें अजय जी की बात में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। इस बार देखिए भाजपा का प्रदर्शन खराब नहीं है। इस बार उन्होंने 29 सीटें जीती है, भले ही वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में पहले से इस चुनाव में जो है पहले से मजबूत मानी जा रही कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस के हिस्से केवल जमा 6 सीटें आई हैं,
फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बात करें तो 41 सीट जीतने में कामयाब रही है। और ध्यान रहे कि पिछली बार दूसरी प्रादेशिक पार्टियां जो हैं, पीडीपी 28 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी है। तो मतलब भाजपा ने अपनी पोजीशन तो बरकरार रखी है जम्मू में, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मुफ्ती की जो परिवार की बात करें वो सफाया हो गया इस बार। इस बार हरियाणा की बात करें, जेजेपी का उसका सफाया हरियाणा में हो गया है। तो ये चुनाव बहुत अलग है पिछले जो चुनावों से, ये चुनाव बहुत अलग देखने को मिले हैं। अजय जी, कश्मीर में अभी उमर अब्दुल्ला ने जब सीएम की घोषणा भी हो चुकी है वो बनेंगे, उसके बाद बोला कि दिल्ली से अभी चर्चा तो करनी होगी, ये झगड़े करके तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता। कैसे अभी सियासत चलेगी दिल्ली की बातचीत में ये कश्मीर के सीएम की जो बनेंगे? देखिए, मैं आपको क्लियर बताऊं, जो भी है, कोई भी सरकार जब बनती है तो उसको सेंटर पर नजर होती है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब उमर अब्दुल्ला जी को निश्चित तौर से इस बात को कहना भी चाहिए, और वो उन्होंने अच्छी बात कही है कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें मिलके चलना है। अब उमर अब्दुल्ला जी भारत देश के नागरिक हैं, तो उनको भी इस बात को सोचना है कि कांग्रेस में रहते हुए कैसे मैं जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को खत्म करूं, कैसे मैं भारतीय जनता पार्टी ना बनूं, कोई बात नहीं, लेकिन वो काम करूं जिससे कि भारत देश की जनता को प्रसन्नता हो, और उस प्रसन्नता में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर से वो उनको सेंट्रल जो फंड देना चाहती है, जिस काम के लिए देना चाहती है, उसका वो यूज कर सकते हैं। और उमर, ये तो बड़ी खुशी की बात है, उमर अब्दुल्ला जी तो बहुत खत्म हो चुके थे, बिल्कुल जीरो हो चुके थे। भाग्य से फिर से अगर उन्होंने ये पद संभाला है, तो इस पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए, भारत देश की संस्कृति के लिए, भारत देश की अखंडता के लिए, उनको भारत देश के लिए सोचना होगा। और आतंकवाद कैसे खत्म होगा, भ्रष्टाचार वहां कैसे खत्म होगा, कैसे वहां से कश्मीरी पंडितों को रखा जाएगा, किस तरह से नहीं भगाया जाएगा, ये अब उन्हें सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको ऐसा बाहुल्य क्षेत्र बना दे कि पीओके जो हम लेना चाहते हैं, जो मेरा ऑक्युपाइड है, वो हम जो लेना चाहते हैं, वो फिर से एक चर्चा का विषय बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बात पर अब्दुल्ला जी को सोचना पड़ेगा। जी, हर्षवर्धन जी, हरियाणा में कांग्रेस के लिए क्या गलत हुआ? बातें हम बात करें, किसान की बात करें, जवानों की अग्निवीर योजना की बात करें, बेकारी की बात करें, पहलवानों की बात करें, बहुत मुद्दे लेके गई सामने। बीजेपी की आपने जिस प्रकार से बात करी कि ज्ञाति जाति की राजनीति की आपने बात करी, कांग्रेस के लिए कहाँ पे गलत हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखें कि भाजपा ने हरियाणा की बाजी पलटने में जो है जमीनी स्तर पर काम किया। कई बार हम देखें, हमें दिखाया कुछ जाता है, और देखिए आप एग्जिट पोल में क्या आया, और हम पत्रकार बैठ के अलग तरीके का विश्लेषण करते हैं, यूट्यूब पे अब बातों पे जो है यकीन कर लेते हैं। तो यूट्यूब वगैरह पे राजनीति वगैरह नहीं समझी जाती है, आपको ग्राउंड पे जो है जाना पड़ेगा, वहां की स्थितियां अलग है। मैं आपको बता दूं, अभी हरियाणा के कुछ वोटर वगैरह से मेरी बात वगैरह हुई थी चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा साहब किसको वोट दे रहे हैं, तो साहब कांग्रेस को कहा। लेकिन उसी वोटर ने जो है कांग्रेस को वोट न देके जब वोट देने की बारी आई, तो उन्होंने मशीन में जाके अपना दूसरा बटन दबा दिया। तो कई बार ये साइलेंट वोटर ने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया है, और भाजपा ने हरियाणा में बाजी पलटने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट अपना जबरदस्त किया। संघ की बात करें, संघ ने तकरीबन 1000 से ज्यादा बैठकें की, उसका कार्यकर्ता जो है एकजुट करने का उसने काम किया। और हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जितनी सकारात्मक परिस्थितियां उनके लिए थी, वो परफेक्ट पीस थी बैटिंग के लिए कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखिए, आप पहलवान का मुद्दा भी था, किसान का भी था, और लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, आप मनोहर लाल खट्टर को हटा देते हैं 9 महीने पहले, ये अप्रत्याशित था। लेकिन वहां की राजनीति तय करने वाले 3 समूह है हरियाणा की राजनीति में, जवान है, किसान है, पहलवान, और ये तीनों समूह जो है सबसे ज्यादा वहां की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और इन तीनों समूह में सबसे ज्यादा बदनाम कोई पार्टी हाल के समय में हुई थी हरियाणा में, वो आपकी भाजपा थी। तो भाई ये तीनों समूह जो है कांग्रेस की कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे, इसके बावजूद कांग्रेस नहीं जीत पाई। ये बहुत ज्यादा आत्ममंथन का विषय है, और कहीं ना कहीं किसी चेहरे को प्रोजेक्ट न करने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, वो अलग कैंप चल रहा था, शैलजा के साथ उनका एक मत, वो एकजुट नहीं हो पा रहे थे, और उसके कई प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिला पाए। हुड्डा ने असल में किया गया था कि कई निर्दलियों को भी हुड्डा ने जो है टिकट दिलाया, और उनका रणनीति ये थी कि 35 से 40 अगर हम ले आए, और बाकी निर्दलीय जो है ये अगर जीत जाएंगे, तो वो उनके दम पे खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब सोचिए कि 17 आपके बागी कैंडिडेट हैं, उसमें 13 या 14 कैंडिडेट हार जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी स्थितियां वहां पर दिक्कत हुई। और कांग्रेस क्या सोची थी, जाट और दलित अगर उसके साथ आ जाता,
जाट आपका 25% और दलित आपका 20%। अगर ये 45% वोट कांग्रेस अपने पाले में ले आती तो शायद 60 से 70 सीटें आसानी से जीत जाती, लेकिन हुआ उल्टा। बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से बूथ प्रबंधन किया, अच्छा माइक्रो मैनेजमेंट किया और एक रणनीति के तहत जो है वो चुनाव लड़ा। आप ये देखिए कि 240 सीटें आई और तमाम राजनीतिक पंडित इस बात की घोषणा करने लगे कि भाई ये नरेंद्र मोदी लहर अब फीकी पड़ गई है, अब संघ के साथ उनकी तनातनी है साहब, ये है वो है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बूस्टर डोज है। हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा में जीत के बाद भाजपा को एक नया बूस्टर डोज मिला है, मैं कह सकता हूं। अब आने वाले समय में झारखंड में चुनाव होगा, इसके बाद आपका महाराष्ट्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके कैडर में एक जोश आएगा। और कैसे चुनाव जीता जाता है, कांग्रेस को ये भाजपा से सीखने की जरूरत है, मेरा ये कहना है, और आत्ममंथन करने की है। अजय जी, वोटर की बात करें, हरियाणा की वोटर की, बहुत सारे मुद्दे थे। जातिगत गणना की बात करें, पहलवान का मुद्दा, किसान का मुद्दा, जवान का अग्निवीर का मुद्दा। उसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो शैलजा और हुड्डा जी की जो तकरार की हम बात करें, ये सब मुद्दे कांग्रेस को प्रॉब्लम लाई है ये इलेक्शन में, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस को अभी मनोमंथन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको क्लियर बताऊं, जो लड़ाई थी किसानों की, वो किसानों की लड़ाई दुष्यंत चौटाला जी पर बीती है। दुष्यंत चौटाला जी ने, जिन्होंने पिछली बार 10 सीट जीत करके गठबंधन से सरकार बनाने का काम किया था, और किसान नाराज थे। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेटों को गांव में नहीं घुसने दिया है। कई ऐसे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कि वहां से भगा दिया है, और उसका खामियाजा दुष्यंत चौटाला को भुगतना पड़ा है, जो एक भी सीट नहीं आई है। और वो सारी सीटें जो तब्दील हुई है वो कांग्रेस की तरफ हुई है। कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से कांग्रेस को इतनी सीट मिली हुई है। आप याद करिए, 2014 में 47 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था। 2019 में 40 सीटें थी और गठबंधन से सरकार बनाया था, और 2024 में आप 49 सीट भारतीय जनता पार्टी के जो आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि जो आरएसएस का कैडर वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, जो इसे 2014 से लेकर के 2023 तक, 23 तक आप मानिए, जो काम किया है, जिसने हिंदुत्व और सनातनी को मजबूत करने का काम किया, वो वोट कैडर ने उनको जिताने का काम किया है। हमारा ये कहना वाजिब बनता है आज की डेट में कि शैलजा हो, चाहे आप भूपेंद्र हुड्डा जी हो, शैलजा की और किसी भी दल के अंदर, चाहे वो कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हर दल में अलग अलग नेतृत्व करने वाले गुट होते हैं जो उसके साथ चलते हैं। अब शैलजा की भी इच्छा है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, हुड्डा की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। अभी कभी कभी सुना जाता था कि दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जो ये लड़ाई जो चल रही थी, वो हर सीनियर लीडर चाहता है कि हमारे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए ताकि हम पर, हमारे ऊपर लोग विश्वास ज्यादा करें। तो शैलजा की बात नहीं मानी गई और उनको जो सीट दी गई वो कम दी गई। वही हुड्डा की जीत ज्यादा मानी गई, उनको सीट ज्यादा दी गई। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो शैलजा जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी होती जब अमित शाह जी ने उनको ऑफर दिया था। कांग्रेस का जो जनाधार है, कांग्रेस आज जमीनी काम नहीं कर रही है। कांग्रेस को जो भी वोट मिल रहा है वो एंटी कंवेंसिंग का वोट मिल रहा है। कांग्रेस को जो भी वोट मिला है वो वोट मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत करके काम नहीं करने की वजह से कांग्रेस को वोट मिल रहा है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप भारतीय जनता पार्टी से आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद अभी आप जनता के बीच नहीं जाते हैं। अब जनता हिंदुत्व में और भगवान राम और सनातन में फंसी हुई है, तो मजबूरी में गाली देते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ता है उसको, कि भैया ये पकड़ो यार वोट, तुमको जाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और इसी कारण की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव जीती है। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, न मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं। आज मैं आपको एक असलियत बताता हूं। हरियाणा के अंदर 22 विधानसभा ऐसी है जिस 22 विधानसभा पर प्रवासियों का असर है। मैं किसे प्रवासी कह रहा हूं? वो प्रवासी जो अन्य राज्य से आकर हरियाणा में रह रहे हैं। हरियाणा गुड़गांव में आप देखिए 9 विधानसभा में, और फरीदाबाद में 9 विधानसभा में प्रवासी बाहुल्य हैं। ये 10-10 लाख लोग वोटर हैं यहाँ पर।
यानी कि 20 लाख सोनीपत, पानीपत, पिंजौर, पंचकुला, ये सब प्रवासी रहते हैं जो मजदूर काम करते हैं। उनका किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब वो काम करते हैं तो उस फैक्ट्री मालिक के प्रति वफादार होते हैं, उस लोगों के प्रति वफादार होते हैं और राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं। इसलिए वो ये भूल जाते हैं किसको वोट देना है। वो ये जानते हैं भैया मोदी जी अच्छे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, मैं हिंदुत्व हूं, मैंने उठा के वोट दे दिया। और वो वोट फैक्टर जो है वो 22 विधानसभा पर बड़ा असर डालता है। प्रवासियों का वोट कभी भी ये नहीं देखता कि, चाहे आपके गुजरात में ले लीजिए, आप गुजरात में भी देखिए, गुजरात में जो प्रवासी हैं तो वो ये सोचते हैं कि राष्ट्रहित की जो बात करेगा मैं उसके लिए वोट दूंगा। तो वो प्रवासी जिन्होंने वोट दिया है वो वोट देने के बाद भी मजबूर हो जाता है उस प्रवासियों के लिए। अब हुड्डा जी, जी जी एक जी सेकंड बोलूंगा। हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने से पहले जब कांग्रेस की चर्चा हो रही थी, हुड्डा जी ने कहा मैं प्रवासी कल्याण बोर्ड को मैनिफेस्टो में लाऊंगा। ऐसा उन्होंने कहा, कई जगह कहा, अखबार में भी कहा। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपनी मैनिफेस्टो में प्रवासी कल्याण बोर्ड लाती है? हरियाणा के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी भारत देश के हर राज्य में प्रवासी कल्याण बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो उन प्रवासियों को बड़ा बुरा असर होता है जिनके साथ बलात्कार होता है, हत्या होता है। मैं का अभाव है। हर्षवर्धन जी जल्दी से 10 सेकंड फटाफट आपका बात को जो कहना चाहते हो बस। मैं ये कहना चाहता कि इस चुनाव में पहली बार दलित चेहरे को लेकर चर्चा हुई। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी का कार्ड चला था कांग्रेस से पंजाब में, तो कुमारी सैलजा ने पहले अपनी महत्वाकांक्षा खुले तौर पर जाहिर कर दी और उसके बाद एक बड़ी रणनीतिक भूल भाजपा ने की जो इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और उस मुद्दे को हवा देने का काम किया। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला था, लेकिन इसका फायदा लेने के लिए भाजपा ने हर जगह चर्चा की। मनोहर लाल खट्टर ने तो यहाँ तक कह दिया साहब कि आप भाजपा में शामिल होने का आपको ऑफर ही दे डाला उन्होंने जो है। इसी तरीके से हम देखें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है उन्होंने भी कहा कि शैलजा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देना चाहिए। तो अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा एक सेकंड में कि यहाँ पर दलितों के वोट तो ले लिया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सत्ता में जो है हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी, तब कुछ बात बनेगी। और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं भी नहीं तो जो है वो इतिहास बन जाएंगी। जैसे देखा कि हुड्डा जी के टाइम में हमने देखा कि किस तरीके से मिर्च गोहाना का काम, ये तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी। जी पांडे जी, मैं आपको एक चीज बता दूं आपको। पांडे जी, आप हमारे अनुज भी हैं उम्र के हिसाब से, वैसे तो आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और आप हमारे साथी हैं। जल्दी से मैं एक सेकंड में कहूंगा पांडे जी, ये दुनिया बदल रही है, ये युवक बदल रहे हैं, नौजवान अब जाति को नहीं मानता है। हमें समझना होगा कि इस देश का दुश्मन कौन है और उसके हिसाब से राजनीति को बहुत सारी बातें हैं, युवाओं को भी समझ दिए, वोटर जो है उनको भी समझ दिए। बाकी अभी जो एनालिसिस हमने किया कि क्या क्या फैक्टर्स जो काम किए हैं दोनों राज्यों में, इससे चर्चा की। डॉक्टर अजय जी और हर्षवर्धन जी दोनों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शक મિત્રો હોટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરી મળીશું નવા મુદ્દા સાથે. રજા આપશો. નમસ્કાર.